Welcome students in your online science class. In this video we are going to learn about the new chapter that is human body. So you all know that human body is made up of many parts. So we have a different parts, it means different organ, different body parts, and each part performs specific function in your body. We all know that our body is made up of different types of tiny cells. It means हमारी बॉडी जो है वो छोटे छोटे सेल्स की बनी होती है और वो सेल्स मिलके इट मीन्स मोर देन वन सेल्स मिलके ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके टिश्यूज बनाते हैं एंड दैट टिश्यू कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन्स and these organ make organ system. So here you can see tiny cells make tissues and that tissues make organs and these organ make our organ system which is present in the body. There are two types of organs in our body. First one is the external organs. So external organs that we can see include head, ear, hair, eyes, nose, chin, arms, hand, legs. So these are the external organ. Next one is the internal organ. So some organs such as brain, lungs, kidney, stomach, which is present inside our body and we cannot see the organs. So these organs are called internal organs. So the organ makes several organ system which is present inside our body and which possess different function in the body. The first system is circulatory system, respiratory system, digestive system, urinary system, nervous system, muscular system and skeletal system. So in this chapter we are going to learn the three major system of your body, that is nervous system, muscular system and skeletal system. We'll start with the first one, that is skeletal system. So the skeletal system is a framework of bone that provides shape and support to the body. So जब भी आपके दिमाग में skeletal system आता है तो it is directly related to the bones of your body. The bones are hard whitish tissue present inside the body. Bones जो है वो whitish tissue होते हैं जो हमारे body में present होते हैं. There are 206 bone in the body of an adult human being. 206 जितनी अलग अलग बोन्स जो है वो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं. नाउ व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम? सो स्केलेटल सिस्टम गिव शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी. सपोर्ट और शेप देता है बॉडी को. प्रोटेक्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स. इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है लाइक हार्ट, लंग्स, किडनी, ब्रेन. इट इज़ ऑल्सो हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी. विद द हेल्प ऑफ द मसल्स बोन्स जो है वो हमारे मूव करते हैं. हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग ब्लड फ्रॉम द बॉडी. बोन मैरो, अ सॉफ्ट जेली लाइक सब्सटेंस फाउंड इनसाइड द बोन्स, प्रोड्यूस द रेड ब्लड सेल्स. So here it is the structure of bone marrow. Now what is bone marrow? So bone marrow is a soft jelly like substance found inside the bones, helps in producing blood for the body. सो बोन मैरो जो है वो हमारे बोन के अंदर प्रेजेंट होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है और ये ब्लड प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है. मेनली रेड ब्लड सेल्स ये प्रोड्यूस करता है. द नेक्स्ट इज पार्ट्स ऑफ अ स्केलेटल सिस्टम. सो द स्कल, बैकबोन और इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पाइन, रिब केज, लिम्स, गर्डल्स आर द मेन पार्ट ऑफ योर skeletal system. We'll start with the first one, that is skull. So skull is made up of two types of bone, cranial bone and facial bone. Cranial bone protects your brain and facial bone protect your eyes and nose. So the cranial bone, there are total 8 bone present in your cranial bones and 14 facial bones present in your skull. The next part of the vertebral column is a backbone. So backbone or spine, it is made up of small bone which is called vertebrae and these vertebrae is arranged one above other. एक दूसरे के ऊपर अरेंज किए रहे हुए थे जिसको बोलते हैं vertebral column. So these vertebral column or backbone or spine helps or allows our body
टू बेंड और ट्विस्ट इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। ये बैकबोन हमारे बॉडी को डिफरेंट डायरेक्शन में बेंड होने के लिए और ट्विस्ट होने के लिए हेल्प करता है। देयर इज़ वन मोर फंक्शन ऑफ द बैकबोन दैट इट प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड इज पासेस थ्रू द वर्टिबल कॉलम और ये उस स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। नाउ व्हाट इज द स्पाइनल कॉर्ड दैट वी आर गोइंग टू लर्न लेटर इन दिस वीडियो। The next part of the skeletal system is a rib cage. So rib cage is the framework of bone in the chest. This is the diagram of the rib cage. So rib cage is the framework of bone and it is made up of curved bone called ribs. ये जो rib cage है वो ribs से बना होता है, curved bones होते हैं, मुड़े हुए bones होते हैं. The ribs are attached to the vertebral column in the back and sternum in the front. रिब्स जो है वो स्टर्नम यानी फ्रंट साइड में स्टर्नम से अटैच होते हैं एंड बैक साइड में वर्टिबल कॉलम से अटैच होते हैं एंड वो केज फॉर्म करते हैं। केज फॉर्म किस लिए करते हैं? टू प्रोटेक्ट्स द लंग्स एंड हार्ट। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्केलेटल सिस्टम इज लिम्स। सो आवर आर्म्स एंड लेग्स आर कॉल्ड लिम्स। हमारे हाथ और पैर को हम लिम्स बोलते हैं that we are using for the movement. We have one pair of upper limbs that is our arm and one pair of lower limb that is our legs. So our upper limb, that means our arm consists forearm, wrist, palm and fingers and उसमें एक longest bone होती है that is humerus bone. Lower limbs consist leg, ankle, feet and toe. लोअर लिम्ब में भी एक लॉन्गेस्ट बोन होती है दैट इज कॉल्ड फेमur, दैट इज अवर थाई बोन. सो हियर यू कैन सी ह्यूमरस बोन प्रेजेंट इन आवर आर्म्स. ये सबसे लंबी बोन है हैंड में. एंड फेमur बोन इन आवर लेग्स, ये हमारे लेग में सबसे लंबी बोन है. नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्केलेटल सिस्टम इज गर्डल्स. सो वी हैव टू पेयर्स ऑफ गर्डल्स, shoulder girdles and hip girdles. So the arm are attached to the shoulder girdles जिसको हम pectoral girdles भी बोलते हैं. हमारे हाथ जो है वो हमारे शोल्डर से अटैच होते हैं, that is our shoulder girdles. The shoulder girdles allow circulatory and rotatory movement of the arm. हमारा आर्म हमारे बॉडी से शोल्डर गर्डल्स के थ्रू कनेक्टेड रहता है जो हमारे आर्म्स को रोटेट करने में हेल्प करता है. हमारा लेग्स भी हमारे बॉडी से हिप गर्डल्स से जुड़ा होता है जिसको पेल्विक गर्डल्स बोलते हैं एंड दैट पेल्विक गर्डल्स अलाउज द स्विंगिंग मूवमेंट ऑफ द लेग्स. वो भी हमारे लेग्स को स्विंग करने में हेल्प करता है. सो हियर यू कैन सी द शोल्डर गर्डल्स एंड द पेल्विक गर्डल्स. शोल्डर गर्डल्स को हम पेक्टोरल गर्डल्स बोलते हैं एंड पेल्विक गर्डल्स इज कॉल्ड हिप गर्डल्स. द नेक्स्ट टॉपिक इज जॉइंट्स. सो अ जॉइंट इज अ प्लेस वेयर टू बोन्स आर लिंक टुगेदर. दो बोन्स को एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए जॉइंट्स की हेल्प लेनी पड़ती है एंड जॉइंट्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ जॉइंट प्रेजेंट इन आवर बॉडी. फर्स्ट वन इज अ immovable joints and movable joints. So what are the immovable joints? So the joints that do not allow any movement of the bones are called immovable joints. ऐसे joints जो bones के movement को allow नहीं करते हैं, उनको move करने में help नहीं करते हैं, that is immovable joints. And the bone of skull, skull के जो bone होते हैं वो skull को move करने के लिए help नहीं करते हैं except the lower jaw. इट मीन्स आपके पूरे स्कल में सिर्फ आपका लोअर जॉ जो है वो ही मूव करता है, पूरा स्कल मूव नहीं करता है. द नेक्स्ट वन इज मूवेबल जॉइंट. सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट प्रेजेंट इन योर बॉडी, दैट इज पाइवॉट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट. तो द जॉइंट दैट अलाउ फ्लेक्सिबल मूवमेंट ऑफ बोन्स, ऐसे जॉइंट्स जो बोन्स के मूवमेंट को अलाउ करते हैं, दैट इज द मूवेबल जॉइंट्स. फर्स्ट वन इज अ पाइवॉट जॉइंट. पाइवॉट जॉइंट इज प्रेजेंट बिटवीन योर स्कल एंड योर टॉप वर्टिब्री. आपका जो स्कल है वो आपके बॉडी से
किस जॉइंट के थ्रू कनेक्टेड रहता है, दैट इज़ पाइवट जॉइंट के थ्रू कनेक्टेड करता है। और वो जॉइंट आपके स्कल को, यानी आपके स्कल और आपके नेक को मूव करने में हेल्प करता है, डाउन, अप, डाउन एंड साइडवेज। द सेकेंड वन इज अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सो दीज जॉइंट्स आर फाउंड इन द शोल्डर एंड हिप। ये आपके शोल्डर और हिप में मिलेंगे आपको, एंड दे अलाउ ट्विस्टिंग एंड टर्निंग मूवमेंट एट द हिप एंड स्विंगिंग मूवमेंट ऑफ आवर आर्म्स। ये हमारे आर्म्स और हमारे लेग्स को ट्विस्ट और टर्न करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट वन इज अ हिंज जॉइंट। सो दीज आर फाउंड इन द नी, एल्बो, फिंगर एंड टोज। ये आपके नी में मिलेगा आपको, एल्बो में रहता है, फिंगर्स में रहता है एंड टोज में रहता है। लाइक द हिंज ऑफ अ डोर, डोर का जो हिंज होता है उसकी तरह ये मूवमेंट करता है। इट मीन्स ओनली इन टू डायरेक्शन, दैट इज फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड्स, अंदर और बाहर। जैसे आप डोर को ओपन करते हैं वैसे ही ये हिंज जॉइंट आपके एल्बो को, नी को और फिंगर्स को मूव करने में हेल्प करता है, ओनली फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड्स। द नेक्स्ट वन इज अ ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट्स आर फाउंड इन योर रिस्ट एंड योर एंकल। रिस्ट मतलब जहाँ पे आप वॉच पहनते हो वहाँ पे, और आपके लेग में, एंकल में ये ग्लाइडिंग जॉइंट मिलेगा आपको, एंड दे अलाउ फ्लैट बोन टू स्लाइड ओवर ईच अदर। ये इसमें बहुत सारे बोन्स जो है वो अटैच रहते हैं और ये अलाउ करता है रिस्ट और एंकल को मूव करने में। So you can see we have some example of pivot joint. So you can see it is present between your skull and top vertebrae, और ये आपके स्कल को मूव करने में हेल्प करता है, sideways and ups and down. The next example is for gliding joint. Gliding joint, here you can see it is allowing the movement of your ankle.